हाँ तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फास्ट जो द थर्ड लेवल का मैं फर्स्ट पार्ट को बताया कि अभी तक जो नरेटर है वो मतलब जो थर्ड लेवल पे वो जाना चाहता था वो वहां पे पहुंच गया था। आगे उसका देखिए उसका कंटिन्यूएशन में देयर आर बर्ड्स स्पीटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ये ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with teeny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like a 18, 19 something. I never saw many beards and sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-bottom shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small carrier, and its locomotive with a funnel-shaped stack, and then I know. तो डिस्क्रिप्शन में वो आगे बताते जा रहा है जहाँ पे वो थर्ड लेवल में जो पहुंच गया था वहां पर फर्श पर पीकदान रखे हुए थे और स्टेशन पर प्रकाश की झलक मेरी आंखों में पड़ी। एक व्यक्ति अपने कमर की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। वो खींचकर उसका ढक्कन खोला, अपनी घड़ी की तरफ देखा और अपने भौरे को ऊपर चढ़ाई। वो एक डर्बी टोप, छोटे मोर वाला 4 बटनों का कोट पहना हुआ था और उसकी बड़ी काली नोकदार मूछें थी। फिर मैं चारों ओर देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति 1890 के समकालीन वस्त्र पहने हुए था। मैं कभी भी अपने जीवन में इतनी लंबी घनी दाढ़ी, कलमे और शौकिया मूछें नहीं देखा था। एक महिला रेलगाड़ी के दरवाजे को से चलकर आई। वो अपने बटन वाले ऊंचे जूते को ऊपर स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके पीछे पटरियों पर मैं एक रेल इंजन की झलक देखा। यह बहुत छोटा कुरियर और एक्स कंपनी का इंजन था जिसके एक कुप्पी के आकार की चिमनी थी और फिर मुझे मालूम पड़ा मतलब उस समय जो था वो बहुत आगे की जो समय था उसके बारे में वो बता रहा था कि उस समय ट्रेन कैसी थी, लोग कैसे कपड़ा किस ढंग का पहनते थे। तो स्टेशन में जाने के बाद इन सब चीजों को उसको दिखाई दिया। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of appeared at his feet. It was the World, and the World hasn't been published for years. The lead story said something about President Calvin, and I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States as we wanted to go. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the stairs. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm-leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II
over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That isn't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. और इसे और पक्का करने के लिए मैं समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास समाचार पत्रों के ढेर पर नजर डाली। वो द वर्ल्ड नामक समाचार पत्र था और द वर्ल्ड कोई वर्षों से नहीं छपा है। मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा था। मैं वो प्रथम पृष्ठ सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देख लिया था और इस पर जून 1894 छपा हुआ था। मैं टिकट खिड़कियों की तरह मुड़ा, यह जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं वो टिकटों को खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्यों में 1894 के वर्ष में जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते थे ले जाएगी और मैं ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस की 2 टिकट चाहता था। क्या तुम कभी वहां गए हो? वो अभी भी एक आश्चर्यजनक शहर है जहां बड़े पुराने प्रकार के घर, बड़े बगीचे और बड़े पेड़ हैं जिसकी डालियां ऊपर की ओर मिलती हैं और गलियां छत के समान हैं। और 1894 में गर्मियों की शाम दुगुनी लंबी होती थी और लोग बाहर अपने बगीचों में बैठे हुए होते। पुरुष सिगारेट पीते हुए शांतिपूर्वक बातें करते रहते, औरतें तार यंत्र की पंखों को हिलाती रहती और चारों तरफ जुगनियों का झुंड होता था और ये एक शांतिपूर्ण संसार होता था। प्रथम विश्व युद्ध में भी इसे अभी भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। क्लार्क ने किराया जोड़ा। उसने मेरी टोपी के आकर्षक फीते की तरफ देखा, लेकिन वो किराया को जोड़ता रहा और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था। लेकिन जब मैं किराया गिनकर बाहर निकाला और ऊपर की ओर देखा तो क्लार्क मेरी ओर घूम रहा था। उसने उन कागज की पर्चियों की तरफ देखकर सिर हिलाया। वो धन नहीं है श्रीमान जी, उसने कहा, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने अपने पास रखे रुपयों की दराज की तरफ देखा। वास्तव में जो ये मानी था पुरानी किस्म के पर्चियों के रूप में था, जो आकार में आजकल के मानी से आधा बड़ा था और बिल्कुल अलग दिखाई देता था। मैं वापस मुड़ा और जल्दी से वहां से निकल गया। जेल कहीं का भी अच्छा नहीं होता, भले ही वो 1894 का क्यों ना हो। Because was night posing with my stamp collection I found, well, do you know what a Thursday cover is? Thursday cover क्या होता है उसके बारे में आप राइटर यहाँ बता रहा है। When a new stamp is issued, stamp collected by some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelopes is called a Thursday cover. Theirs never opened, you just put blank paper in the envelope. That night, among my oldest Thursday cover, I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg.
That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent, dull brown. The stamp was a 6-cent dark brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside was not blank. It read, 941 Wheeler Street, Glassburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now, down the street at the Dallas, someone is playing a piano, and there are all out on the front porch singing Nelly Home. And I am invited over for Imonade. Come to back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. The note is signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out the Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Glassburg in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. तो जब उसने क्लार्क ने उसको वहां से भगा दिया था, मतलब पैसा जो लेके गया था टिकट लेने के लिए वो उस समय का नहीं था, तो उन्होंने वहां से तब चला गया था, क्योंकि अगर वो नहीं करता उसको जेल जाना पड़ता इस डर से। और वो तो बात थी। मेरे विचार में मैं उसी रास्ते से वापस लौट गया जहां से मैं आया था। दूसरे दिन दोपहर को भोजन अवकाश के दौरान मैं $300 लगभग मेरे पास थे सभी बैंक से निकलवाया और पुराने समय की मुद्रा खरीदी, जिसने वास्तव में मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को चिंतित कर दिया। आप किसी भी मुद्रा व्यापारी से पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अधिक शुल्क देना पड़ेगा। मेरे $300 में से $200 से कुछ कम पुरानी मुद्रा मिली, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे, मतलब उस समय जो मार्केट का सब चीज का रेट जो था वो बहुत सस्ता था। लेकिन मुझे दोबारा यह गलियारा कभी भी नहीं मिला जो तीसरे तल की तरफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ले जाता था, यद्यपि मैंने बहुत कोशिश किया था। लुइसा बहुत चिंतित हुई जब मैंने उसे यह सब बताया, और वो नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे तल की और अधिक खोज करूं। और कुछ समय के लिए मैंने तलाश बंद कर दिया। मैं अपने डाक टिकटों की तरफ वापस लौट आया, लेकिन अब हम दोनों खोज रहे थे इस हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण था कि तीसरा तल अब भी वहां मौजूद है। मेरा मित्र सैम बेनर्ड लापता हो गया था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे संदेह था क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था और मैं उसे गर्ल्स बार के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वो हमेशा कहता था कि उसे वो स्थान बहुत पसंद है, और वो वहाँ था बिल्कुल ठीक 1894 में। क्योंकि एक रात अपने डाक टिकट संग्रह को उत्साह से देखते हुए मैंने पाया, अच्छा क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिन का लिफाफा क्या होता है? जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती, डाक टिकट संग्राहक
कुछ खरीद लेते और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते के लिफाफे पर लगाकर डाकघर में डालते थे और डाक खाने की मुहर तिथि को प्रमाणित कर देते। यह लिफाफा प्रथम दिन का लिफाफा कहलाता है। ये कभी नहीं खोले जाते हैं, आप केवल खाली कागज लिफाफे में डालते हैं। उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस लिफाफों में मुझे एक लिफाफा मिला जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां था। यह वहां था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को गिल्सबर्ग में उनके घर में भेज दिया था और यह बात लिफाफे पर लिखा हुआ पता कह रहा था और यह 18 जुलाई 1894 से वहां था। डाकघर की मोहर यह दर्शा रही थी, जबकि मुझे यह बिल्कुल याद नहीं था। डाक टिकट 6 सेंट की थी, हल्की भूरी, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक रूप से जब यह लिफाफा डाक द्वारा दादाजी के पास आया होगा, वो सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा और वहां पर पड़ा रहा तब तक, जब तक मैं इसे बाहर निकाल कर इसे नहीं पढ़ा। अंदर कागज खाली नहीं था। इस पर लिखा था 941 विलाई स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोइस, 18 जुलाई 1894। चार्ली, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक थे। अब मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक हो। और चार्ली, यह सच है, मैं तीसरा तल ढूंढ लिया। मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ और ठीक गली में नीचे की ओर डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है और वे सब बाहर बरामदा में यह गाते हुए गए हैं, रोइस नेली होम, और मुझे नींबू शरबत के लिए बुलाया गया है। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता। यो खोजने योग्य है, मेरा विश्वास करो। इस पत्र पर हस्ताक्षर था सैम। मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों का दुकान पर गया, मैं पाया कि सैम ने पुरानी किस्मों की लगभग $800 मूल्य की मुद्रा खरीदी थी। उससे उसने भूसे, पशु के चारे और अनाज का अच्छा व्यवसाय कर लिया होगा। वो हमेशा कहता था कि उसकी वास्तव में यही करने की इच्छा थी और निश्चित ही वो उसके पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। 1894 में गेल्सबर्ग, इलिनोइस में नहीं। उसका पुराना व्यवसाय क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था। तो यहीं पे जो नरेटर है चार्ली, स्टोरी या तो ऑथर स्टोरी को यहीं पे खत्म करता है। तो इसमें आप लोग ने देख लिए कि एक मतलब लोग अपने कल्पना में किस तरह वो जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को छोड़कर और किसी दुनिया में वो चला जा सकता है और वहां के बारे में किस तरह का विचार उसके मन में आता है, इस चीज के बारे में यहाँ पे ऑथर हम लोग को एक स्टोरी बताया द थर्ड लेवल के द्वारा, जो कि एक मतलब काल्पनिक कहानी है। मतलब इसमें कुछ तो वास्तविक चीज है और कुछ उसमें काल्पनिक चीज भी जुड़ा हुआ है। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। आगे आप लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। थैंक्स टू ऑल।